ان دو اداروں میں تنازع سے لاہور گلوبل ولیج منصوبہ خیر فعال لیز اور کانٹریکٹ ختم ہونے کے باوجود ارینا واک سینٹر کا کنٹرول ایل ڈی اے کو نہیں مل سکا۔ اربوں کے منصوبے سے 9 برس بعد بھی معقول آمدن نہیں ہو سکی۔ ایل ڈی اے کا اربوں روپے کا گلوبل ولیج منصوبہ ارینا واک اینڈ شاپ سینٹر غیر یقینی صورتحال کا شکار۔ ارینا واک اینڈ شاپ سینٹر 2 اداروں میں انتظامی معاملات کی منتقلی پر کشمکش میں پھنس کر رہ گیا۔ ارینا سینٹر کو سی بی ڈی نے ایل ڈی اے سے لیز پر حاصل کیا تھا، جو 9 اپریل کو منسوخ ہو چکی۔ لیز کے تحت منصوبے کو منافع بخش کمرشل مرکز میں تبدیل کیا جانا تھا۔ نگراں حکومت کے دور میں سی بی ڈی پنجاب نے منصوبے کا آپریشن نجی کمپنی کے سپورٹ کیا۔ اتھارٹی نے کانٹریکٹر کے ساتھ معاہدہ بھی ختم کر دیا۔ گلوبل ولیج ایل ڈی اے کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ 3 ماہ گزرنے کے باوجود گلوبل ولیج کا کنٹرول ایل ڈی اے کو منتقل کرنے کا عمل مکمل نہیں ہو سکا۔ ارینا واک اینڈ شاپ سینٹر میں مجموعی طور پر 84 2 منزلہ دکانیں اور شو رومز تعمیر کیے گئے۔ سینٹر میں 23 اسپینش، 18 امریکن، 13 اٹالین، 18 مغل اور 12 چائنیز طرز کے پلازے بھی بنائے گئے۔ اربوں روپے سے تعمیر ہونے والے کمرشل کمپلیکس سے 9 برس میں سی بی ڈی کو کوئی معقول آمدنی نہ ہوئی۔ ایل ڈی کو ڈیجیٹل کرنے کا منصوبہ مہنگا پڑنے لگا ہے۔ 9 برس قبل شروع کیا گیا سیپ سسٹم آج بھی لاگو نہیں ہو سکا۔ ادائیگیاں ڈالرز میں ہونے کے باعث سسٹم کی لاگت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ دفتری امور آج بھی روایتی کاغذی نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ ایل ڈی اے میں جدید ڈیجیٹل نظام متعارف کرانے کے لیے سیپ سسٹم کا نفاذ 2017 میں شروع کیا گیا، جس کا مقصد ادارے کے مالی، انتظامی اور انسانی وسائل سے متعلق تمام امور کو ایک ہی پلیٹ فارم پر منتقل کرنا تھا۔ سیپ سسٹم کی مد میں ایل ڈی اے ہر سال تقریباً 20 ملین روپے ادا کر رہا ہے، جبکہ لائسنس اور دیگر اخراجات ڈالر میں ہونے کے باعث منصوبے کی لاگت میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس وقت سیپ سسٹم کے ذریعے بنیادی طور پر اکاؤنٹس اور ہیومن ریسورسز سے متعلق محدود سہولیات ہی فعال ہیں، جبکہ ملازمین کے میڈیکل سہولیات، چھٹیوں کا ریکارڈ اور متعدد داخلی انتظامی معاملات تاحال اس نظام کے ساتھ مربوط نہیں کیے جا سکے۔ کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کے باوجود ایل ڈی اے کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن کا خواب ابھی تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ روڈا کے لاہور کو سیلاب سے بچانے کے لیے تیاریاں تیز۔ دریائے راوی کے کنارے 41 کلومیٹر طویل حفاظتی بند کی تعمیر جاری ہے اور 14 کلومیٹر ریٹیننگ وال پر 80% زائد کام مکمل ہو چکا۔ دریائے راوی میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حفاظتی اقدامات تیز۔ دریائے راوی کے ساتھ 41 کلومیٹر طویل حفاظتی بند کی تعمیر جاری۔ ابتدائی پوائنٹ سے لاہور سیالکوٹ موٹر وے پل تک حفاظتی بند پر 50% سے زائد اور 14 کلومیٹر ریٹیننگ وال کا کام 80% تک مکمل۔ بند کی مضبوطی کے لیے پتھروں کی پیچنگ، ڈھلوانوں کا استحکام اور حفاظتی تعمیرات پر بھی کام جاری۔ شاہدرہ فارسٹ اور کالا خطائی روڈ کے اطراف میں دریائی کٹاؤ کی زد میں آنے والے مقامات کو محفوظ بنایا جا چکا۔ روڈا حکام کا کہنا ہے کہ راوی حفاظتی بند منصوبے کی تکمیل سے لاہور اور شیخوپورہ کے ملحقہ علاقوں کو مستقل طور پر سیلاب کے خطرات سے محفوظ رکھنے میں مدد ملے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ وزیر بلدیات سشان رفیع کا کہنا ہے کہ مریم نواز کا سوہنا پنجاب پروگرام کے تحت 78% واٹر سٹوریج ٹینک بن گئے ہیں اور جولائی تک مزید 31 زیر زمین واٹر ٹینکس تعمیر ہوئے۔ وزیر بلدیات سشان رفیع کی زیر صدارت پروگرام مینجمنٹ یونٹ میں اجلاس ہوا۔ اسپیشل سیکرٹری شاہد سمان لک اور ایڈیشنل سیکرٹری مہرین فہیم عباسی نے شرکت کی۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 49 شہروں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وزیر بلدیات نے کہا اب تک 82 ٹینکس پر 100%، جبکہ 22 ٹینکس کا 70% کام مکمل ہو چکا ہے۔ اربن فلڈنگ کی روک تھام کے لیے 105 انڈر گراؤنڈ ٹینک بنانے کی منظوری بھی دی گئی تھی۔ 124 ڈرینز پر بھی کام 51% سے زائد مکمل ہو چکا ہے۔ 26 ڈرینز کی 70 سے 90% تک تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ ناظرین، ڈنکی لگا کر اٹلی جانے والے 12 نوجوان ڈنکی مافیا کے ہتھے لگ گئے ہیں اور پکڑے گئے نوجوانوں میں سے 7 کا تعلق لاہور کے علاقے سے ہے، جبکہ ایف آئی اے نے مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ رپورٹ کریں گے فہد امین۔ اور وقاص بھی لاپتہ ہونے والے نوجوانوں میں شامل ہیں۔ اہل خانہ کے مطابق ایجنٹ عامر لاکھوں روپے لے کر نوجوانوں کو ساتھ لے گیا۔ ایران پہنچنے کے بعد نوجوانوں سے خاندان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ اہل خانہ نے بتایا کہ وقاص کے نمبر سے رقم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایجنٹ نے 3 نوجوانوں کی دل دہلا دینے والی فوٹیج میں نوجوانوں کے گلے میں زنجیریں باندھی گئی ہیں۔ نوجوان رو رو کر گھر والوں سے رقم بھیجنے کی استدعا کر رہے ہیں۔ اہل خانہ کے مطابق پہلے 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی گئی، جو بھیج دیے گئے۔ اب ہر بندے کے لیے مزید $6,000
$1,000 की डिमांड कर रहे हैं। इटली भिजवाने के नाम पर 12 नौजवानों की मुबैना लापता होने के केस में FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर ने मुकदमा दर्ज करके खुसूसी टीम तश्कील दे दी है ताकि नौजवानों का सुराग लगाया जा सके। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। नासिन सोजो वाटर पार्क इंतजामी की संगीन गफलत। लाहौर में कमाने वाले स्विमिंग पूल के ड्रेनेज होल पर हिफाजती जाली गायब है, जबकि नन्ही रहमीन फातिमा की लाहिकी ने बच्ची का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। मुरस्सा का कहना है कि पार्क इंतजामी अगवा का शुबा साहिर करके मामला दबाने की कोशिश करती रही। इंतजामिया की संगीन गफलत। स्विमिंग पूल की इंतजामिया ड्रेनेज होल पर हिफाजती जाली लगाना भूल गई। 10 साला रहमीन फातिमा ने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई लेकिन बाहर ना आ सकी। वरसा बच्ची को ढूंढते रहे, जबकि उनके मुताबिक इंतजामिया अगवा का शुबा जाहिर करके मामला दबाने की कोशिश करती रही। 18 इंच का या 20 इंच का आप होल छोड़ दें उसको, आप वो पानी निकास जो है वो बच्चों को निकालने से पहले या पानी निकाल दें, तो आप इसकी किसकी गफलत है? ऑब्वियसली ये मालकान की गफलत है। अब उन्होंने इस गफलत को मिटाने के लिए अपने मुलाजमीन पे डाल दिया कि इनकी गफलत है। हमारा ये मुतालबा है कि जो मालकान हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए और सख्त सजा दी जाए। हर मुमकिन तलाश के बावजूद बच्ची का सुराग न मिला तो वरसा को पूल के ड्रेनेज होल का ढक्कन और हिफाजती जाली न होने पर शुबा हुआ। तलाश करने पर बच्ची की लाश ड्रेनेज होल से मिल गई। अचानक से हमारी नज़र पड़ी कि इस ड्रेन से वो जा सकती है। दैन हमने उनको कहा कि भाई ये चीज़ ओपन कर लो, हमें रिक्वेस्ट की, नहीं वो कह रहे यहाँ पे तो जा सकती। वो बच्ची को वो फलानी माई लेके जा रही थी, वहाँ देखे जाके वहाँ देखे। दैन में हम लोगों ने फिर पैनिक किया कि भाई इसको ओपन करो। जब हमने ओपन किया तो दैन वो बच्ची सांसें नहीं चल रही थी उसकी बेचारी की। पुलिस ने बच्ची की वालिदा फरीहा नदीम की मुद्दत में दफा 322 के तहत मुकदमा दर्ज करके मैनेजर सनाउल्लाह, सिक्योरिटी इंचार्ज नवीद और कैमरों के इंचार्ज समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजिमान के बयान भी रिकॉर्ड कर लिए गए, जबकि मजीद हकाइक तफ्तीश के बाद सामने आएंगे। लवाहिकीन ने बच्ची का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक वरसा को मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लाने का कहा गया है और अहकाम मौसूल होने तक लाश वरसा के हवाले नहीं की जाएगी। अफसोसनाक वाक़े में जान से जाने वाली रहमीन फातिमा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मुतासरा खानदान दुबई से छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आया था। वरसा ने वाटर पार्क मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। यह दे दिया गया है और सरकारी रेट 14 रुपए पर रोटी शहर में कहीं भी दस्तयाब नहीं है। मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ निर्ख पर और कम वजन रोटी फरोख्त की जा रही है। नान रोटी एसोसिएशन ने सादा रोटी 25 रुपए करने का मुतालबा भी कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे जाहिद आबिद। सरकारी रेट कागजों में रह गया, रोटी महंगी होने लगी। रोटी का सरकारी रेट 14 रुपए मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में मुख्तलिफ मकामात पर 20 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के गुज़श्ता रोज इजलास में रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा किया गया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि आटा और LPG महंगी होने के बाद रोटी के निर्ख में इजाफा नागुज़ीर है। रोटी का निर्ख 25 रुपए मुकर्रर किया जाए। अवाम कहते हैं पहले ही हर तरफ महंगाई ने जकड़ा हुआ है, रोटी महंगी हुई तो पेट पालना भी मुश्किल हो जाएगा। वो भी की करेंगे, जो चीज़ महंगी मिलेगी तो महंगी देंगे। जहाँ तो इन्हें कुछ चीज़ सस्ती मिलती है तो भी सस्ती दें। जो 15 रुपये दे रही, 14 रुपये दे रही थी, उन्होंने चीज़ सस्ती पै रही थी। उन चीज़ें महंगी मिलेंगी तो भी महंगी दे रहे हैं। रोटी 25 की होती है, गरीब आम के लिए तो वो रोटी भी खाना मुश्किल हो जाएगा ना। एक रोटी तो गरीब आम खा सकती है, जो पहले 15 रुपये की थी अब 10 रुपये एक चीज़ के पीछे बढ़ रहे हैं। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा सरकारी निर्ख पर रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं। हुकूमत 3 रोज में मुज़ाकरात करके रोटी की कीमत का असर-ए-नौ तयन करे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत पंजाब भर में LPG माफिया सरगर्म हैं। गर्मियों में भी LPG की कीमत कम नहीं हो सकी। LPG रोज बरोज गरीब की पहुंच से दूर होने लगी है। गरीब की पहुंच से दूर हो गई। शहर में ओगरा रेट पर LPG मिलना ख्वाब बन चुका है। मुतल्लिका इदारे LPG की कीमत कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। पोश इलाकों, अंदरून शहर, सरहदी और दही इलाकों में LPG 420 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। रेलवे स्टेशन के तरफ लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, समनाबाद, गुलशन रावी समेत मुख्तलिफ इलाकों में 350 से 370 रुपए फी किलो रेट पर मिल रही है। ओगरा ने LPG की फी किलो कीमत 241 रुपए 43 पैसे। LPG की कीमत कंट्रोल करने के दावे जबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं। सुई गैस घरों में आती नहीं, जबकि LPG की कीमतें बढ़ने से गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। हर दुकानदार अपनी मर्जी की कीमत पर LPG फरोख्त कर रहा है। कोई 450 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई 400 दे रहा है। 9 बजे गैस चली जाती है, जाके काम से जाओ, खाना खाने का खाना नहीं मिलता गर्म, क्या करें। हर बंदा ही परेशान है गैस की महंगाई की वजह से ना। गैस कम से कम होनी चाहिए, जितनी सस्ती हो उतना गरीब आवाम का फायदा होता है। दुकानदारों का कहना है कि LPG प्लांट से महंगी मिलती है, महंगी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। पंजाब में सरकारी गंदम का इजरा शुरू, फी मन कीमत 3800 रुपये मुकर्रर, जबकि डायरेक्टर जनरल खुराक पंजाब
अमजद हफीज का कहना है कि सूबे में गंदम, आटे और रोटी की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए सरकारी गंदम का इजरा किया गया है। में सरकारी गंदम का इजरा शुरू, फी मन कीमत 3800 रुपये मुकर्रर की गई। डायरेक्टर जनरल खुराक पंजाब अमजद हफीज का कहना है कि सूबे में गंदम, आटे और रोटी की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए सरकारी गंदम का इजरा किया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ निर्ख में बदतदरीज। मजीद बताया कि पास्को की 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम भी पंजाब हुकूमत के महकमा खुराक को मुंतकिल की जा रही है ताकि सूबे में गंदम की वाफर दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाई जा सके। वज़ीर आला पंजाब की वाज़ेह हिदायत है कि गंदम, आटे और रोटी की कीमत किसी सूरत बढ़ने न दी जाए। गंदम के सरकारी ज़खायर का इजरा एक मरबूत हिकमत अमली के तहत जारी रहेगा। मार्केट में गंदम की कीमत की मुसलसल निगरानी की जा रही है। डायरेक्टर जनरल फूड पंजाब ने वाज़ेह किया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी या मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस का पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने लीव इनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेचुटी, रूल 17A की बहाली और सरकारी स्कूल्स की आउटसोर्सिंग खत्म करने का मुतालिबा किया। पंजाब असम्बली के सामने आगीगा के ज़ेर एहतमाम होने वाले मुजाहरे में मुख्तलिफ अजला से आया असातिज़ा ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। आगीगा रहनुमाओं का कहना था कि लीव इनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेचुटी और रूल 17A जैसे बुनियादी सर्विस हकूक खत्म किए जा रहे हैं, जबकि सरकारी तालीमी इदारों की आउटसोर्सिंग से सरकारी निज़ाम में तालीम को नुकसान पहुँचेगा। आगीगा रहनुमाओं ने कहा कि सरकारी तालीमी इदारों की आउटसोर्सिंग किसी सूरत कबूल नहीं। गर्मियों की छुट्टियों में असातिज़ा को दूर दराज इलाकों में ट्रेनिंग के लिए भेजना ज्यादती है। क्योंकि स्कूल तो आउटसोर्स हो ही चुके हैं, अब कॉलेजेस में भी शुरू हो गया। वो है निजकारी का मसला। हमारे 25 कॉलेज जो हैं ये प्राइवेट हैंडलर्स को, ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। और कॉमर्स कॉलेजेस भी तो ये दे चुके हैं और स्कूलों की तरह अब ये कॉलेजेस के साथ भी ऐसा करने जा रहे हैं और ये सबसे खौफनाक बात है। इन्होंने मुलाजमीन का मुआशी कत्ल किया हुआ है और उस्ताज़ा की तो बिल्कुल जो रिस्पेक्ट है वो ख़त्म कर दी है। ये मिनिस्टर जो है ये मिनिस्टर एजुकेशन के नहीं है बल्कि ये मिनिस्टर निजकारी के हैं। लीव इनकैशमेंट में जो इन्होंने कट लगाया है उसको ये ख़त्म करें। उसके बाद पेंशन वाला है हमारा, उसमें भी कट है। 45% हमारा DR है वो भी हमें नहीं दिया जा रहा। मुजाहरे की शुरका ने खबरदार किया, अगर हुकूमत ने मुतालबात मंजूर न किए तो एहतजाजी तहरीक का दायरा वसी किया जाएगा। नाज़रीन, सरकारी डाले का ज़ाती इस्तेमाल पैरा ऑफिसर के गले पड़ गया है। पहाड़ी इलाकों में सरकारी डाले के इस्तेमाल पर बड़ी सियासी शख्सियत की शिकायत काम कर गई है। पैरा ऑफिसर को शौकॉस नोटिस भी जारी कर दिया गया। पैरा की सरकारी गाड़ी GBH 256 का गैर मजाज ज़ाती इस्तेमाल। रावलपिंडी के सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर नूर मोहम्मद को नोटिस जारी। 3 जुलाई को गाड़ी पंजाब की हदूद से बाहर लेकर जाने का इल्जाम। गाड़ी भूरभन, नथिया गली, एबटाबाद और हसन अब्दाल तक गई। गाड़ी ने 228 किलोमीटर फासला तय किया। एडिशनल DG एडमिन यासिर फरीद ने शोक आज़मी ऑफिसर से तहरीरी वजाहत तलब कर ली। नोटिस के मुताबिक सरकारी गाड़ी का ज़ाती इस्तेमाल बदनुमानी के ज़मरे में आता है। सरकारी डाले के ज़ाती इस्तेमाल पर पैरा रूल 2026 के तहत डिसिप्लिनरी कार्रवाई की गई। नोटिस की कॉपी चीफ सेक्रेटरी, DG पैरा और दीगर को इरसाल कर दी गई। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। तिबी आलात की सरकारी खरीदारी से केस में अहम फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने खरीदारी के लिए नाअहल करार देने के खिलाफ फार्मास्यूटिकल कंपनी की अपील खारिज कर दी है। अदालत का कहना है कि प्रोक्योरमेंट कवानीन के तहत मुकम्मल कानूनी फॉर्म मौजूद हुआ तो इंटर कोर्ट अपील दायर नहीं की जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद और जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने निजी फार्मा कंपनी की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुना दिया। कंपनी के वकला का अदालत में मौकफ था कि महकमा सेहत पंजाब ने गुज़िश्ता बरस तिब्बी आलात, सर्जिकल डिस्पोजेबल अशिया की खरीदारी के लिए ई टेंडर जारी किया था। टेक्निकल इवेल्युएशन कमेटी ने जाँच पड़ताल के बाद बास कंपनियों की बोलियों को गैर मौजू करार दिया। इस फैसले को ग्रेवियंस रिड्रेसल कमेटी ने भी बरकरार रखा, जिस पर मुतलका फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने MD पंजाब पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजू किया। MD प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी ने दोनों फोरम्स के फैसले को कलअदम करते हुए कंपनियों को बोली के लिए तकनीकी तौर पर अहल करार दिया और खरीदारी का अमल कानून के मुताबिक आगे बढ़ाने की हिदायत की। जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद ने फैसले में लिखा कि फार्मा कंपनी की आईनी दरख्वास्त सिंगल बेंच ने मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद दरख्वास्त गुजार ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। 2 रुकनी बेंच
बेंच ने तफसीली फैसले में करार दिया कि रूल्स के तहत फराहम करदा फॉरम्स टेक्निकल इवेल्युएशन कमेटी के फैसले पर नजरसानी से तब्दील या कलअदम करार दे सकते हैं। अदालत ने करार दिया कि मैनेजिंग डायरेक्टर PPRA का फैसला असल हुक्म नहीं बल्कि कानूनी नजरसानी के अमल का हिस्सा है। जब किसी खसूसी कानून के तहत मुकम्मल अपील या नजरसानी का निज़ाम मौजूद हो तो इंट्रा कोर्ट अपील का हक बाकी नहीं रहता। अदालत ने बोली के लिए नाअहल करार देने के खिलाफ फार्मास्यूटिकल कंपनी की इंट्रा कोर्ट अपील को नाकाबिले समात करार देते हुए खारिज कर दिया। मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली साकिब जद्दड़ और अदाकारा मोमिना इकबाल के दरमियान 80 लाख रुपए की इमारत में खयानत का मुबैना तनाज़ा। जस्टिस ऑफ पीस की जानिब से मुकदमा दर्ज करने के हुक्म को मुअत्तल करते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। रुकने असम्बली और अदाकारा के दरमियान 80 लाख रुपए की अमानत में खयानत का मामला लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस अबर गुल खान ने रिमशा इकबाल की दरखास्त पर गुज़श्ता समात का तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में करार दिया गया कि दरखास्त में उठाए गए कानूनी निकात गौर तलब हैं, लिहाजा जस्टिस ऑफ पीस का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म फिलहाल मुअत्तल किया जाता है। दरखास्त गुजार के मुताबिक जस्टिस ऑफ पीस ने मौक़िफ़ सुने बगैर FIR दर्ज करने का हुक्म जारी किया, इसलिए इस हुक्म को कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने साकिब जद्दड़ समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और केस की मज़ीद समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी। प्लास्टिक का 74 लाख रुपए किराया जमा करवाने से मुताल्लिक केस लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से बार बार मोहलत की दरख्वास्त पर बरहमी का इज़हार किया है। अदालत ने वकील को दलाइल मुकम्मल करने के लिए 1 रोज़ की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। प्लाजा का 74 लाख रुपए किराया जमा कराने से मुतालिक केस लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि जस्टिस ऑफ पीस के हुक्म के खिलाफ दरखास्त क्यों दायर की गई। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म के तहत 15 लाख रुपए जमा करवा दिए गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर किराया बर वक्त अदा न किया जाए तो दरखास्त गुजार डिफाल्टर शुमार होगा। अगर इतना किराया अदा नहीं किया जा सकता था तो प्लाजा हासिल क्यों किया गया। अदालत ने वकील की जानिब से बार बार मोहलत की दरखास्त पर बरहमी का इजहार भी किया। अदालत ने कहा कि या तो दरखास्त वापस ले लें या वाज़ेह करें कि किराया अदा किया गया है या नहीं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरखास्त गुजार के वकील को दलाइल मुकम्मल करने के लिए 1 रोज की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी।